Hello everyone, a very warm welcome to my channel BioEazy, and now I have next part on sexual reproduction in flowering plants. Alright, so next heading is Microsporogenesis. तो देखिए बच्चों, इस वर्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक माइक्रो, स्पोरो एंड जेनेसिस. सो जेनेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन करना. ओके, माइक्रोस्पोर इट मीन्स जो मेल गैमेट्स हैं इनका यहाँ फॉर्मेशन होता है. सो इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ऑलराइट, सो इन दिस स्टेप पोलन ग्रेन्स like male gametophytes are formed. Alright, the process of the formation of microspores from a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis. It means इस process के अंदर diploid pollen mother cell. Alright, so this is the diploid pollen mother cell. Alright, and in short it is called as PMC, and there is meiosis division occur in PMC. Alright, so after meiosis division, the one PMC produces 4 pollen tetrad. These are the pollen tetrad. Alright, and this is the callus. So we can label this diagram. These are the pollen tetrad. Alright, and this is the callus. Alright, so next point is microspores are arranged in a cluster of 4 cells known as microspore tetrad. Alright, so ये जो cluster है 4 cells का, इसको हम tetrad बोलते हैं. Tetra means 4. Alright, so this is the enlarged view of pollen grain tetrad. You can see the 4 pollen grains like 1, 2, 3 and 4. Alright, next is the after maturation and dehydration of anther, microspores get dissociated from each other and developed into the pollen grains. Callus था, उस callus को callase enzyme melt करता है, and callase enzyme releases by the tapetum. Alright, so callase enzyme जो है वो callus को melt करेगा, तो pollen tetrad जो हैं वो free हो जाएंगे. Alright, in mature anther only 2 layers are found like epidermis and endothecium. तो initially इसमें 4 layers थी, but in maturation condition only 2 layers are found. Alright, next point is in microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed and released with descents of anther. बच्चों एंथर के फटने को, एंथर के बर्स्ट होने को डिसेंस कहते हैं, और मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ 2 ही लेयरिंग होती है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम लेयर के अंदर सेल्यूलॉजिक स्ट्रिप्स होती है. ऑलराइट, और वही हेल्प करती है उस मैच्योर एंथर को डिसेंस करने में. ऑलराइट, नेक्स्ट इज द स्टोमियम, एन एरिया ऑफ thin walled cells in a sporangium or pollen sac that breaks to release the pollen grains when the surrounding tissues dries. Alright, next point, stomium is also called as line of descent. Alright, यानी एंथर जिस प्लेस से बर्स्ट होता है उसको लाइन ऑफ डिसेंस कहते हैं और उसको स्टोमियम कहते हैं. ऑलराइट, इट मीन्स वहां पर थिन वॉल्ड सेल्स मिलती है जो इजीली डिसेंस हो जाती है. ऑलराइट, एन्युलस is a ring-shaped structure in a fern that consists of differentially thick-walled cells. Alright, fern के फ्लावर के मेल पार्ट में आपको annulus मिलता है. Alright, जो thick-walled area होता है. Alright, so you can see the image of mature descens anther. देखिए यहाँ से जो है anther descens होता है और ये pollen grain जो है environment में release हो जाते हैं. Alright, so next image is scanning electron micrograph of few pollen grains. अब यहाँ पर different types के pollen grains देख सकते हैं. Alright, जिनका exine different structure का होता है. So next heading is pollen grain. Alright, these are the male gametophyte. Alright, ये male gametes होता है plant का. In the flower of hibiscus or any other flower, these are found as yellowish powder. ये हिबिस्कस प्लांट के अंदर येलोइश पाउडर के फॉर्मेट में होता है. ऑलराइट, वी कैन सी द वेरियस टाइप्स ऑफ साइज, शेप, कलर्स एंड डिजाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स अंडर माइक्रोस्कोप्स. ऑलराइट, सो इस इमेज में देखिए आप,
ये डिफरेंट डिजाइन स्ट्रक्चर के आपको क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इनका शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल होते हैं एंड डायमीटर 25 to 50 μm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द कवर्ड विथ 2 लेयर्ड, इट मीन्स पोलन ग्रेन्स के ऊपर आपको 2 लेयर्ड मिलेगी। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन and inner layer is called as intine. All right, now number 1 is exine. So as the name indicates that it is outer and made up of sporopollenin. याद रखना है बच्चों, इसका फॉर्मेशन sporopollenin से होता है। All right, sporopollenin is the most resistant organic material in universe because it can withstand high temperature, strong acids, alkali and enzyme. All right, it means high temperature, strong acids, alkali and enzymes की प्रेजेंस में sporopollenin डिग्रेड नहीं होता है। All right, next is the pollen grains are well preserved for long time as fossils due to sporopollenin. तो sporopollenin जो होता है इनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखता है, प्रिजर्व रखता है, किनको, पोलन ग्रेन्स को। ऑलराइट, एक्साइन ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस पैटर्न्स एंड डिजाइन ऑन पोलन ग्रेन्स। तो एक्साइन जो होता है वो वेरियस पैटर्न और डिजाइन के फॉर्म में भी रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑन एक्साइन स्मॉल एपर्चर आर फाउंड कॉल्ड एज जर्म पोर्स। तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब के बाहर आने के लिए स्मॉल जर्म पोर्स होते हैं, यहां से पोलन ट्यूब बाहर आती है। ऑलराइट, ऑन जर्म पोर्स स्पोरोपोलेनिन इज नॉट फाउंड बिकॉज from germ pores pollen tubes, because from germ pore pollen tube is produced. all right, तो जो places एक्साइन की वो प्लेस जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहां जर्म पोर्स होते हैं और उन जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हेडिंग इज इंटाइन। सो एज द नेम इंडिकेट्स इट इज इनर थिन कंटिन्यूअस लेयर एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ऑलराइट, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इंटाइन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। ऑलराइट, एक कंप्लीटली मैच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर आपको 2 टाइप्स की सेल मिलेगी। वन इज वेजिटेटिव सेल एंड नंबर 2 इज जनरेटिव सेल्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हेडिंग इज वेजिटेटिव सेल। इट इज बिगर irregular shaped nucleus and has abundant food reserves. ऑलराइट, तो इस पोलन ग्रेन के अंदर जो भी फूड रिजर्व होता है वो कहाँ होता है, वो वेजिटेटिव सेल में होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 2 इज जनरेटिव सेल। इट इज स्मॉल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल शेप का होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो इसका शेप जो होता है वो स्पिंडल होता है। देखिए नेक्स्ट हम डायग्राम में इसको देखते हैं, पोलन ग्रेन और एंड यू कैन सी द एक्साइन। ऑलराइट, एंड दिस इज द इंटाइन। ऑलराइट, नाउ you can see the nucleus and vacuole. Now you can see in asymmetric spindle. So spindle shape क्या होता है बच्चों कि सेंटर से तो जो है सर्कुलर है एंड टेपरिंग टूवर्ड्स द ईच एंड। ऑलराइट, सो देखिए इनके एंड जो है टेपरिंग है, मीन्स नुकीले हैं। ऑलराइट, और सेंटर से सर्कुलर है, इसको हम एसिमेट्रिक स्पिंडल बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर जब डिवीजन होगा, नाउ यू कैन सी द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ऑलराइट, so this is the mature pollen grain. Next is the, in over 60% angiosperms pollen grains are shed at 2-celled stage. all right, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जैसे ही रिलीज होंगे एंथर से उनमें 2 सेल्स होती है। वन इज द जनरेटिव सेल एंड अदर वन इज द वेजिटेटिव सेल। ऑलराइट, एंड इन रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव सेल divides mitotically to produce 2 male gametes. ऑलराइट, तो 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन जब रिलीज होंगे एंथर से तो वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है और 3 सेल्ड स्टेज के अंदर वन इज वेजिटेटिव सेल,
and 2 are the male gametes. All right, next heading is the pollen allergy. Pollen grains produce severe allergy, all right, and bronchial affliction. It causes hay fever and chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis. तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सर्टेन एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऑलराइट, लाइक कैरोट ग्रास, like Parthenium hysterophorus that came in India along with imported wheat is major source of pollen allergy. all right, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जी भी क्रिएट करते हैं. एग्जाम्पल फॉर्म में आप क्या लर्न करेंगे? कैरेट ग्रास लाइक पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस. ऑल राइट, सो नेक्स्ट हेडिंग इज पोलन प्रोडक्ट्स. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. लाइक नंबर 1 इज pollen food supplements. all right, so pollen grain contains abundant carbohydrates and unsaturated fat. all right, they are used in form of tablets, syrups in western countries for enhancing the परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस. ऑल राइट, सो इनका यूज एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में लिया जाता है और इनको टैबलेट्स एंड सिरप के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ऑल राइट, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड अनसैचुरेटेड फैट्स एबंडेंट फॉर्म में मिलता है, बहुत ज्यादा फॉर्म में मिलता है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज द पोलन क्रीम्स. सो पोलन ग्रेन्स protect themselves from UV rays, thus they are used in creams, emulsions for providing smoothness and protection to skin. all right, so ये इनके basic uses हैं. so next heading is pollen viability. all right, the period for which pollen grains remain viable or functional इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी. देखिए एंथर से रिलीज होने के बाद में पोलन ग्रेन कितने टाइम तक वाइबल रहेगा, लिविंग रहेगा, इट इज कॉल्ड एज पोलन वाइबिलिटी. ऑल राइट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है. ऑल राइट, पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल फॉर 30 minutes to few months. Now we have the examples like rice and wheat. इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 30 minutes तक वाइबल रहते हैं. ऑल राइट, बट इन रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी इनके पोलन ग्रेन्स फ्यू मंथ्स तक वाइबल रहते हैं. ऑल राइट, पोलन ग्रेन कैन बी क्रायो प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन लाइक -196 डिग्री सेल्सियस एंड यूज्ड एज पोलन बैंक्स, सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.